Now beta, we will talk about the parallel combination of resistors. We will talk about we have discussed the series combination of resistors, and we also calculated the equivalent resistance of the series combination of resistors. Are you getting me? उसके जो points भी है उसके related जो भी points थे वो हमने discuss करे हैं. Now moving to the second part of it, that is about the parallel combination of resistors. Parallel combination of resistors. I'm going to write here parallel combination of resistors. जैसे कि आपको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है. पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब टू और मोर देन टू रेजिस्टर्स हम कनेक्ट करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं? इफ वन एंड ऑफ द ईच रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू one common point at one common point and the other end of the each resistor is connected at other common point end point. ये तो हुआ parallel combination of resistor. That means अगर हम ऐसे सीरीज सर्किट में हम रेजिस्टेंस को ऐसे कनेक्ट करेंगे कि जिस रेजिस्टेंस का वन एंड जो होगा उसको हम कनेक्ट करेंगे टू ए कॉमन पॉइंट ईच रेजिस्टर. सपोज हमने यहाँ पे दो रेजिस्टेंस सर्किट में यूज़ किए हैं. So this is R1 and R2. R1 and R2 are the two resistors that are used in the circuit, wherein the one end of R1 each resistor, that means R1, R2, R3 होगा, R4 होगा, that is connected at one common point, that is connected at one, say that is VA, that is A, sorry, and the other end of each resistor is also connected to a common point, that is, suppose that is B, that is B. Such combination is called as parallel combination, that is called as parallel combination. अगर इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से सेल के साथ या बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, so this combination becomes as parallel combination. This combination becomes as parallel combination. Are you getting me? So I will write here like this. Two or more resistors are said to be connected in parallel. Okay beta, if one end of each resistor whether कितने भी resistor होंगे that are used in the circuit, 1, 2, 3, more than 3, are you getting me? If one end of each resistor is connected at one common point and the other end of each resistor is connected at other common point. अब देखो, this was up to this is a common saying कि resistors in parallels क्या होते हैं. यहाँ पे जो important point जो हमने note करना है, like in the series combination of circuit, this resistors, we have mentioned that in series combination current जो होता है वो flow करता है throughout जो circuit वो flow करेगा, that is constant. Current flowing through the circuit is same. Here what is the main point? I have written two or more resistors are said to be connected in parallel if one end of each resistor is connected at one common point and the other end of each resistor is connected to other common point. Now what I am writing, that is very important, such that this point is very important, such that the potential difference okay beta, across each resistor, the potential difference across each resistor is equal to the applied potential difference. Are you getting me beta? Across the combination
of the resistors across the combination of the resistors. This point is very important, such that the potential difference across each resistor, I'm not saying about the each resistor, हर एक resistor के across जो potential difference set होगी, that will be equal to the applied potential difference. So this means it's equal to the applied potential difference that is across the combination of the resistor. This means यहाँ पे क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट फ्लो रहता था सेम, current was flowing in the circuit that was constant, that was flowing same through each resistor. But यहाँ पे क्या होता है, voltage is applied across each resistor. जो voltage यहाँ पे आपको बाहर से सेट हो रही है, सपोज V is applied, so ये V जो होगा V will be same applied through R1, same applied through R2. Are you getting me? यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, यहाँ पे सेम पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस ईच रेजिस्टर. कौन सा अप्लाई, जो भी आपका अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सपोज यहाँ पे 10 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे सप्लाई हुआ है तो R1 के अराउंड भी, R1 के अक्रॉस भी 10 वोल्ट होगा, R2 के अक्रॉस भी 10 वोल्ट होगा. Are you getting me बेटा? फॉर इन द सीरीज कॉम्बिनेशन अगर यहाँ पे 10 वोल्ट था तो R1 को हमने अगर सीरीज में कनेक्ट किया था R2, तो R1 एंड R2 के अराउंड इट डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस, जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होती उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होता है. Are you getting me? But in this case what happens in parallel combination of resistors, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द टू एंड्स, अक्रॉस ईच रेजिस्टर, क्या होगा इसका, दैट इज इक्वल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस. मैं आपको बताऊंगा ये कैसे होता है, ये कॉन्सेप्ट कैसे हुआ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका ये जो सेम पोटेंशियल डिफरेंस वो कैसे सेट रहेगा बिटवीन द टू पॉइंट्स. आर यू गेटिंग मी? देखो बेटा, अगर जितना भी यहाँ पे लेट अस सपोज दैट इज 10 वोल्ट इसके अराउंड अक्रॉस भी सेट होगा, इसके अक्रॉस भी सेट होगा 10 वोल्ट. देखो बेटा क्यों, यहाँ पे लेट अस सपोज दिस V पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द टू एंड्स VA. Let us suppose this VA is applied across A point and VB is applied across B point. Are you getting me? अब देखो यहाँ पे जो VA, अब when V voltage is applied across the circuit, आपको पता है current flows through it. Suppose here current flows through it. ओके बेटा, जब यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे करंट की बात जो है वो बाद में करेंगे कि करंट क्या सेम फ्लो करेगा या डिफरेंट फ्लो करेगा, वो दैट वी विल डिस्कस लेटर. आर यू गेटिंग मी? सो आवर क्वेश्चन इज हाउ वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम दैट इज इक्वल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस. देखो बेटा, यहाँ पे हमने ये जो दिस इज अ वायर, अब हम इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो वायर की है वो हम नेग्लेक्ट करते हैं. दैट मीन्स हम मान के चलते हैं ये कि रेजिस्टेंस ऑफ दिस रेजिस्टर इज क्वाइट लार्ज एज कंपेयर टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर. दिस इज ए कॉन्सेप्ट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. हम ये मान के चलते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर इज वेरी मच लार्ज एज कंपेयर टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर. ऑलमोस्ट जो रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर जो है वो हम नेग्लेक्ट करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे. दैट मीन्स इस VA, ये जो VA इट विल फ्लो अक्रॉस R1, इट विल फ्लो अक्रॉस, यहाँ पे भी सेट होगा VA, यहाँ पे भी सेट होगा VA. आर यू गेटिंग मी? एंड ऑल्सो यहाँ पे देखो, हमने यहाँ ये वायर है, दिस इट हैज़ ए लीस्ट रेजिस्टेंस. जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ VA पॉइंट पे, उतना ही इस एंड पे भी होगा, इस रेजिस्टेंस में भी, बिकॉज यहाँ पे जो वायर है इसकी रेजिस्टेंस को हमने नेग्लेक्ट किया. दैट मीन्स इट हैज़ क्वाइट लेस रेजिस्टेंस. अब यहाँ पे जितना VA पोटेंशियल इतना डेवलप हुआ सेम यहाँ पे भी वही होगा, VA ही होगा, बिकॉज ये जो वायर है जिसके रेजिस्टेंस को हमने नेग्लेक्ट माना है. Are you getting? Because the resistance of this resistor is quite large as compared to the resistance of this wire. Wire की जो resistance है that is almost equal to the negligible. So यहाँ पे जो set हुआ potential difference वही होगा along R1 and वही होगा along R2. Same is the case like this. अब यहाँ से देखो, यहाँ पे VB potential difference create होगा. यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे जब लीव करेगा ये
दैट मीन्स आर ये भी वायर है, वायर में रेजिस्टेंस जो है दिस इज ऑल्सो सपोज दिस इज पॉइंट A1 एंड दिस इज पॉइंट A2। आर यू गेटिंग? ए वन पे भी क्या हुआ, A1 पे भी जितना पोटेंशियल ए पे था, दैट इज वी ए, सेम इज द डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल एट A1। वाई? बिकॉज वी आर नेग्लेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर। A2 पॉइंट पे जितनी ए पॉइंट पे जितना पोटेंशियल क्रिएट हुआ उतना ही पोटेंशियल A2 पे भी होगा, बिकॉज यहाँ पे जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर है दैट इज मच लेस एज कम्पेयर टू द रेजिस्टेंस ऑफ दिस रेजिस्टर। Are you getting me? Same is the case like this. Suppose this is a point B1 and B2. Are you getting me? अब यहाँ पे जो पोटेंशियल डेवलप होगा, how much will be the potential that is developed at B1? Same, that is going to be VB, because यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस वायर की वो हमने माना है कि that is negligible, that is almost zero as compared to the resistance of the, so that is why यहाँ पे भी क्या होगा, VB सेट होगा, यहाँ पे भी VB सेट होगा। so same potential जितना आपका V है that is across A R1, VA across R2, are you getting? and लीविंग में भी यहाँ पे क्या होगा, VB एंड VB दैट इज सेट एट, जितना यहाँ पे VB होगा जितना यहाँ पे V है उतना ही सेट होगा कहाँ पे, B पॉइंट पे, बिकॉज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज क्वाइट लेस एज कम्पेयर टू द रेजिस्टेंस ऑफ द। समझ आवा गोबर बता रहा होते बेफिक्री कौशल पे वुशु गोबर क्वेश्चन ये सर इस पोटेंशियल डिफरेंस सपोज ए पॉइंटस पर VA गसान में सेट, बहुत दपान VA गई सेट अक्रॉस R1 तह बराबर ती रोजान R2 तह रोजान बराबर की। वाई? वो क्या? बिकॉज इस वायर गोबर मून ए पॉइंटस पे अगर मे पोटेंशियल डिफरेंस गो क्रिएट VA, आई एम टॉकिंग अबाउट द पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपको रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, वो इक्वल होता है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। वो कैसे होगा? इस पोटेंशियल डिफरेंस गसान क्रिएट V यह में सपोज ए पे VA बनो मे ये VA बह दपान VA तह अक्रॉस R1 डेवलप, VA सुई VA गस अक्रॉस R2 कैज वो यह रेजिस्टर लगित, रेजिस्टर लगित ये वायर अख मजस बस दपान अगर ये वायर बस दपान यमिश रेजिस्टेंस कमिश रेजिस्टर यह ज़्यादा एज कम्पेयर टू द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर। अम मूजूब वन ये रेजिस्टेंस ऑफ द वायर नेग्लेक्ट कर गो अम गो इट ऑफर्स नील रेजिस्टेंस, ते गो तेल गि पोटेंशियल ड्रॉप ये क्या गो यूत VA पे डेवलप गो सुई VA गि डेवलप अक्रॉस R1, सुई VA गि अप्लाई, मतलब सह हसा गि VA सुई गि डेवलप अक्रॉस R2 गो अवे गो ना VA यह रोज बराबर कांस्टेंट थ्रू R1, VA रोज कांस्टेंट थ्रू R2। समझ गोबर? वाई? बिकॉज यहाँ पे जो रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर जो है वो हम नेग्लेक्ट करते हैं, वो दैट इज क्वाइट लेस एज कम्पेयर टू द रेजिस्टेंस ऑफ दिस रेजिस्टर। तब वन यहाँ पे हमने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है दैट इज सच इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर सा कत नेर बराबर, सो नेर बराबर अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस से, तो दैट मीन्स V नेर में बराबर इस V आसान V यूत मे तह मे VA तह मे VB त, या तह में VA मज R1 मज प्रोड्यूस VB, दैट मीन्स VA मज VA सो सेम एज थ्रू इन द R2। समझ गो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन ये है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस एट द 2 पॉइंट्स दैट रिमेन्स कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू द applied potential difference across the combination of the resistors, across the combinations of the, because resistance of the wire is quite less, almost negligible than the resistors, so potential of tel kya wan potential of A1 and A2 कत नेर बराबर, सुनेर AS बराबर नेर ना बराबर, पोटेंशियल ऑफ B1 and B2 कत नेर बराबर, सुनेर ना BS बराबर, सो ना गोबर गो A1 गो अमुक मतलब गो A1 तो B1, A1 पे A पोटेंशियल इस A ऑलरेडी कत यह गसान सेट फ्रॉम द आउटर दिस बैटरी, B1 पे एट पॉइंट B गो अमुक मतलब गो यूत पोटेंशियल में BS पे तूत मे B1 पे, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच रेजिस्टर इज क्वाइट इक्वल एज कम्पेयर टू द क्वाइट इक्वल एज दैट ऑफ क्वाइट इक्वल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। Very important point. This was the point that you had to remember. In the parallel combination of resistors, the potential difference across each resistor is equal to the applied potential difference across the combination of the resistors. समझ आई वन? अब देखो
वन ब्याक पॉइंट इस पैरेलल कॉम्बिनेशन मज सीरीज कॉम्बिनेशन मज पोर कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सर ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट वाज फ्लोइंग current was same whatever the current was flowing through the circuit that was constant but यहाँ पे different story है here in the parallel combination current gets split up go अमेक मतलब go current में flow गसान same current is varying flowing of current is varying मतलब गो current में constant रोजन क्या समझ current रोज में constant गुबुर कैसे रोज में current constant because बुशुस करन combination set cos combination that is a parallel combination ताई अगर वो लेख बे बना बे फिगर वो सा गुबुर यह सा गो मैं रेजिस्टर आख दिस इज R1 बैक 3 रेजिस्टर्स भी कनेक्ट कर सकता हूँ मैं 4 भी कर सकता हूँ 5 भी कर सकता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे देखो इनको मैंने इस एंड को मैंने कॉमन एंड बनाया दिस इज A दिस इज B आर यू गेटिंग मी गोबर सो दिस is applied to a battery which gives the source of V voltage across the circuit अब देखो इसकी वजह से क्या होगा ये हमसे क्या गैस करंट गैस ना फ्लो ये करंट सपोज यहाँ पे I फ्लो हो रहा है अब देखो इस R1 के अराउंड R2 के अक्रॉस जो करंट फ्लो होगा that will not be same that will be different that is going to be different are you getting me so that means यही पॉइंट आपने फाइंड आउट या अपने नोट आउट करना है दिस करंट गेट्स स्प्लिट अप ये आई गेस ब्रेक इनटू डिफरेंट यहाँ पे सपोज R1 के अराउंड I1 एंड I2 R2 के अक्रॉस I2 करंट फ्लो करेगा आर यू गेटिंग मी सो वेरिंग नेचर कुछ ये वेरिंग नेचर करंट सेम नेचर कुछ सेम नेचर पोटेंशियल डिफरेंस समझ आर यू गेटिंग मी वह थो वो याद ये प्रूफ अगर कर तुलन वेरिंग नेचर वोल क्या तुलन वेरिंग वी हैव टू टेक द स्टेप ऑफ वेरिंग नेचर कुछ वेरी गसान वी हैव टू स्टडी आउट दैट इक्वेशन वो अगर तुम सीरीज कॉम्बिनेशन मज वो सीरीज कॉम्बिनेशन वो वेरिंग नेचर दैट वाज द पोटेंशियल डिफरेंस was equal to V1 upon V1 plus V2 so यह इसको हमने प्रूव किया कि नहीं इसी इक्वेशन को हमने ये इक्वेशन हमारी बेसिक इक्वेशन थी उसको हमने सॉल्व करके हमने प्रूफ निकाला अब सीरीज कॉम्बिनेशन में I वाज सेम वेरिंग नेचर वाज पोटेंशियल अब यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे देखो वेरिंग नेचर क्या है यहाँ पे करंट दैट मीन्स I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 आर यू गेटिंग मी यही I1 फ्लो करेगा I2 फ्लो करेगा एंड यहाँ पे I करंट फ्लो करेगा समझ वो वेरिंग नेचर यहाँ पे करंट इज गेटिंग स्प्लिट अप ये स्प्लिट गसान करंट ये हमने स्टडी किया यहाँ पे पोटेंशियल सेम रहता है पोटेंशियल इज सेम we have to not study out the case of potential difference we have to study the case of varying nature what is that ये थो वो याद है ये भी प्रूफ कर I have to take the varying nature series combination में current was flowing the same and varying nature was about the potential difference as को study potential वहीं शीत गसान current vary I equal to I1 plus I2 अब यहाँ पे क्या है V सेम रहेगा V को कुछ नहीं करना हमने स्टडी आउट बेसिक इक्वेशन बनी I equal to I1 plus I2 समझे अब हमने इसका प्रूफ निकालना है प्रूफ मतलब गो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चिकाड़ी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब गो R1 के R2 जगह अकई रेजिस्टेंस यूज कर दैट बिकम्स द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जहां से जो करंट फ्लो करेगा सुकर में जहां से ये वोल्टेज सेटअप होगा सुगर इसमें सेम वोल्टेज सेटअप एज टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस ओके बेटा अब देखो बेसिक इक्वेशन क्या बनी हमारी I इक्वल टू I1 प्लस I2 I1 प्लस I2 अब आपको कैसे लिखना है लेट V बी द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A यहाँ पे मान अक्रॉस A ओके आर यू गेटिंग मी एंड अक्रॉस B लेट V बी द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस आप पॉज करके भी नोट कर सकते हो ये आई विल नॉट राइट दिस ओके let V be the applied potential difference across A and B the current I जो है drawn from the cell or battery divides into two parts देखो I1 and I2
at point A. Current I1 flows through R1 and current I2 flows through R2. Are you getting me, beta? So tel kya वन I near में tel बराबर इसमें I current I should that is get split I1 plus I2. So here I1 is I is equal to I1 plus R2. This is the varying nature. अब देखो V same रहता है. What was the voltage, applied voltage? That was V. That will be across R1. वो भी V. That will be across, developed across R1. V also that will be applied across R2. Are you getting me? अब देखो इक्वेशन हमारी बनी वैरिंग नेचर वाली. I equal to I1 plus I2. I have to study out this equation. इक्वेशन A. अब यहाँ पे तीन पैरामीटर्स है I1, I2. Are you getting me? We have to find out the value of I1, we have to find out the value of I2, and we have to find out the value of I. समझे को बुरी बात? Simple. By using with the help of by applying Ohm's law. Yeah, we know that from the Ohm's law. आप कुछ भी कर सकते. Ohm's law क्या शुआ V is equal to IR. V is equal to IR. देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 है, R2 है. Are you getting me? याद थे जो ऊपर. I to find out the value of I1. अगर वो 1 याद थे जो ऊपर. अगर वो ये 1, I had to find out the value of I1. तेल हकना वो लिखित V में रोजन same. V रोज में same. I1 that is I1 flowing across R1. So V will be equal to I1 R1. V will be equal to I1. यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ इसका वैल्यू. सो I1 नेर में बराबर तिलगुबर V अपॉन R1. सो इक्वेशन नंबर 1 बनी में इसमें सबस्टिट्यूट करो नहीं किया इक्वेशन एस मस बनी है. सिमिलरली याद थे जो गोबर. सिमिलरली V will be equal to this potential difference. जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस से इक्वल है, दैट इज इक्वल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज गोइंग टू बी सेट अक्रॉस अक्रॉस R2 वेयर इन I2 इज फ्लोइंग. एम मतलब को V सेम नेचर से I V वेरिंग नेचर से में I2 एंड R2 के अक्रॉस. दैट मीन्स विच इम्प्लाई दैट I2 का वैल्यू. अब देखो I2 का वैल्यू I1 का वैल्यू फाइंड आउट किया. I2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है. I2 का वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे. I2 विल बी इक्वल टू V अपॉन R2. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो यहाँ वो समझ. अब देखो यहाँ पे अब I का वैल्यू निकालना है. I मतलब को ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस यूज करवाएं. Out of the two resistors, I am using only one resistor. देखो उसके लिए हम फिगर A बनाएंगे. समझो को बुरी वन वुशु सा बनाओ भाई फिगर ये किस पॉइंट ये बनी. लेट अस सपोज दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन. अब देखो यहाँ पे दिस इज अ बैटरी supplying a potential difference of V volts across the two ends of a conductor, that is A and B. अब what is the effective resistance? ये तीन गुबर among ये चुका में flow current I across R. Are you getting me? From the positive to negative terminal. So from Ohm's law also we can find out V will be equal to. So here V will be equal to. अब देखो I into R. V will be equal to I into our first equation. What was first equation? हमारी first equation जो थी I equal to I1 plus I2. That means I का I1 वैल्यू हमने फाइंड आउट किया, I2 वैल्यू हमने फाइंड आउट किया. We have to find out the value of I हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम सिंपली I का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं. I will be equal to V upon R. ये जो R यहाँ पे है, this R is equal to equivalent resistance. that is called as effective resistance. ये R नियर में बराबर effective resistance of R1 plus R2. effective resistance of R1 plus मतलब effective resistance of R1 and R2. effective resistance of R1 and that means अब देखो I का वैल्यू फाइंड आउट किया, I1 का वैल्यू फाइंड आउट किया, I2 का वैल्यू फाइंड आउट किया. We will substitute the value of I1, I2 and I in equation number here. Our main equation is I is equal to I1 plus I2. So substituting, I'll write here, substituting the values of I1, I2 and I in equation A. याद थे जो ऊपर. Okay, what's the value of what's equation A? Equation A like be it as I is equal to I1 plus I2. Varying nature वाला. What is the value of I? V upon R is equal to what's the value of I1? I1 का value V upon R1
प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2, I2 का वैल्यू V अपॉन R2, याद थी जगह पर। अब देखो यहाँ पे V जो है आई विल टेक आउट द कॉमन फ्रॉम बोथ द साइड्स, V विल बी इक्वल टू 1 अपॉन R will be equal to here 1 upon R1 plus 1 upon R2, guys ना, because जो V को मैं common out करूँगा and it will cancel out here, what the equation becomes 1 upon R will be equal to, this R is the equivalent resistance, I will write here equivalent resistance or effective resistance, okay, यहाँ पे 1 upon effective resistance is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2. This is the calculation of an equivalent resistance in parallel combination. In parallel combination. अब यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे आपका दिख रहा है कि equivalent resistance का reciprocal. What is this reciprocal? That means the reciprocal of equivalent resistance or effective resistance of number of resistors connected in parallel is equal to the sum of the reciprocals of individual resistances. Are you getting me? That is the sum of the reciprocal of individual resistances. वहाँ पे हमारा डायरेक्ट सम निकलता था, that is the algebraic sum of the equivalent resistance. यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे reciprocal निकल रहा है, हमारा यहाँ पे reciprocal निकल रहा है. So I will write here like this. हमारी जो फॉर्मूला बनी that is R1 upon RE is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2. That means the equivalent. That means I will write here thus the reciprocal of equivalent resistances, reciprocal of equivalent resistances of number of resistors जो हमने कनेक्ट किए, connected in parallel, connected in is equal to the sum of the reciprocals of the individual resistances. ओके बेटा, एंड देखो, अब देखो, लेट अस सपोज R1 इज हियर, R1 is equal to 5 ohm and R2 is equal to let us suppose 3 ohm. What will be the effective resistance in case of parallel combination? We know that parallel combination में 1 upon R will be equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2. Are you getting me? So 1 upon R will be equal to 1 upon 5 plus 1 upon 3. Okay, so what will be equal to 1 upon R will be equal to 3 plus 5 divided by 15. That will be equal to 1 upon R will be equal to 8 upon 15. Okay बेटा, so R का वैल्यू क्या निकलेगा, 15 upon 8. Okay, this will be equal to 8 1.8 ones are 8 1.8 कुछ approximately 1.8 ohm. That means effective resistance becomes, देखो, this is the resistance R1. Here R1 value of R1 was 5, R2 was 3. When we connected R1 and R2 in parallel combination, their effective resistance become the least one. That means lesser than R1, lesser than R2. अब उल्टा हो रहा है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है. सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालते तो वो सबसे ग्रेटेस्ट बन जाती थी. यहाँ पे जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बनेगी, यहाँ पे तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकलेगी ऑफ रेजिस्टर्स की, वो सबसे लीस्ट होगी. दैट्स इट, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस that has been counted in case of parallel combination is the least resistance in the combination, जब resistance, that means अगर आपको किसी सर्किट में करंट का जो फ्लो है उसको बढ़ाना होगा, करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको जब बढ़ाना होगा, दैट मीन्स यू हैव टू गो फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो सीरीज कॉम्बिनेशन कब यूज होगी, जब आपकी जो रेजिस्टेंस होगी वो बढ़ानी होगी. दैट मीन्स व्हेन रेजिस्टेंस इज टू बी इंक्रीज्ड एंड करंट इज टू बी डिक्रीज्ड, दैट टाइम यू हैव टू ऑप्ट फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन. एंड फॉर द this parallel combination, when you have to increase the magnitude of the current flow current flowing through a circuit,
or you have to decrease the circuit, you have to decrease the resistance of the circuit, that is the effective resistance of the circuit, you have to go for that parallel combination. Okay, so this was all about the parallel combination. अब इसके related जो भी points होंगे वो हम nutshell में लिखेंगे about the parallel combination.